Hello students, welcome everyone at Hamdisha English classes. Today I am going to explain lesson number 2 from Beehive, The Sound of Music. Writer is Deborah Chowle. It is compiled. Once again I would like to repeat The Sound of Music, lesson number 2 from Beehive 9th class. Yeah, let us start part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. This lesson I am going to explain in Hindi. First, I would request rather to open your book, go line to line, and try to understand. You will enjoy to listen this explanation. So once again, let us start part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Once again, I have repeated over here. Evelyn Glennie आवाज को बिना सुने ध्यान से सुनती है. God may have taken her hearing, but He has given her book something extraordinary, far more deeply than any of us. Read the following accounts of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. इसका हिंदी अनुवाद पढ़ने से पूर्व ऐसा है, ईश्वर ने उससे उसकी श्रवण शक्ति ले ली थी, किंतु उससे कुछ विशेष असाधारण चीज़ दी थी. एक व्यक्ति का वर्णन पढ़िए जिसने एक शारीरिक अयोग्यता के विरुद्ध संघर्ष किया और अपने जीवन को एक सफल कहानी बनाया. Rush hour crowds jostle for position on the underground platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibration of approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager who had some Scottish form. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. इसका हिंदी अनुवाद. भीड़ वाले समय की भीड़ ने भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्थान पाने के लिए धक्के मारे. एक लगभग 17 वर्ष की छोटी सी लड़की निराश किंतु उत्साह से भरपूर थी. जबकि वह आती ट्रेन के कंपन को महसूस कर रही थी. उसका लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी में पहला दिन था. स्कॉटलैंड के फार्म से किसी किशोरी 19 वर्ष से कम उम्र वाली के लिए काफ़ी संघर्ष भरा दिन था. किंतु यह महत्वाकांक्षी संगीतकार एक बहुत बड़ी चुनौती की बात थी. वह बहुत गहरे से बहरी थी. एल्विन ग्लेनी's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she did not move. Suddenly realized she had not heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her mass has deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she would be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. एवलिन ग्लेनी की श्रवण शक्ति की हानि क्रमिक थी. उसकी माँ याद करती है, जब एवलिन 8 वर्ष की थी तो वह पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी तो
उससे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। उन्होंने जब इवलिन का नाम पुकारा तो हिली भी नहीं। हाँ, मैंने अचानक ही महसूस किया कि उससे कुछ सुना ही नहीं दिया। इसाबेल ग्लेनी का कहना है, कुछ समय तक तो उसने इवलिन की बढ़ती हुई बहरेपन को उनके मित्रों और शिक्षकों से छिपाए रखा, किंतु जब वह 11 वर्ष की हुई तो उसके टोटल अंक, जिसको अपन प्राप्तांक बोलते हैं, सब गड़बड़ा गए थे। उसकी प्राचार्य से उसके माता पिता मिले और उन्होंने अनुरोध किया कि वे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाए। तब यह पाया गया कि उसकी श्रवण शक्ति नसों की क्रमिक शक्ति से क्रमिक हानि के परिणाम स्वरूप गंभीर रूप से रुक गई है। तो उन्हें सलाह दी गई कि उसे श्रवण शक्ति यंत्र लगाया जाए और उसके बहरे व्यक्तियों के स्कूल में भर्ती करवाया जाए उसको अच्छी तरह से। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential at the beginning, and he began by tuning to large drums to different notes. Don't listen enough your ears, he would say. Try to sense it some other way. Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the west up and the lower one from the west down. Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I learned to poem this to open my mind and body to sound and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. इसका हिंदी अनुवाद बहुत गौर से सुनिए। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे पाठ पढ़ाने से पहले आप बुक्स खोल के रखिएगा। ये क्या कहते हैं, गाइड नहीं खोलना, ओरिजिनल बुक खोलना बिहायू की, और लाइन बाय लाइन आप देखेंगे, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी स्टूडेंट्स लोग। किंतु इवलिन इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने एक सामान्य जीवन जीने का, अपने संगीत पे दिलचस्पी से आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय किया। एक दिन एक लड़के को जल तरंग बजाते हुए पाया और निश्चय किया कि वो भी इसे बजाएगी। अधिकांश शिक्षकों ने उसे हतोत्साहित किया, कोई भी उसको उत्साहित नहीं करता था, परंतु ड्रम बजाने वाले रॉन फॉब्स ने उसकी क्षमता को पहचान लिया। अपने कानों से मत सुनो, उन्होंने कहा कि किसी अन्य जगह से महसूस करो। इवलिन कहती, अचानक मैंने पाया कि मैं ऊंचाई पर रखे ड्रम को अपनी कमर के ऊपरी भाग में व नीचे भाग को कमर के नीचे भाग में महसूस कर रही हूँ। फोर्ब्स ने इस अभ्यास को फिर से दोहराया और इवलिन ने पाया कि वो कुछ नोट्स को विभिन्न भागों में महसूस कर रही है। मैंने अपने मस्तिष्क व शरीर के कंपन ध्वनि के साथ उस कंपन को खोलना सीखा और बाकी का बचा हुआ काल केवल डिटर्मिनेशन, दृढ़निश्चय और कठोर परिश्रम करता था। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of Academy. She gradually moved from orchestra work to solo performances. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. इसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर एक किशोर ऑर्केस्ट्रा के साथ किया जब वो 16 वर्ष की हुई। तो क्या देखा कि उसने संगीत को अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उसने संगीत की राष्ट्रीय एकेडमी को ऑडिशन दिया और एकेडमी के इतिहास में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने में पूर्णतः सफल रही। उसके खुशी का कोई पारावार नहीं रहा। एक के बाद एक
उसने ऑर्केस्ट्रा कार्य से अलग होकर एकल प्रदर्शन को अपनाया, जिसको सोलो परफॉर्मेंस बोलते हैं। 3 वर्ष के पाठ्यक्रम के पश्चात उसने सर्वोच्च सम्मानों पर पूरे सम्मान और जो रिस्पेक्ट उसको मिली उस पर अपना कब्जा जमा लिया। सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र उसका बहुत सम्मान ही सम्मान होना चालू हो गया। एंड फॉर दिस इलेवन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हैंड ऑफ है achievement. If you work hard and know where you're going, you'll get there. And she got to the top, right to the top. The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of the 1,000 instruments and hectic international schedule. और इस सब के लिए क्या होना था, इस सब के लिए इवलिन किसी भी प्रकार की हीरोइन उपलब्धि को स्वीकार नहीं करती थी। और कोई भी कठिन व्यक्ति जब परिश्रम करता है ना, तो उसका मानना होता है कि वो कहाँ जा रहा है, तो वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। उसने कहा वो सर्वोच्च उच्चतम स्थान पर पहुँच गई वो आखिरकार। दुनिया के सर्वाधिक मांग वाले परकस्टिनिस्ट, ड्रम बजाने वाले, हजारों वाद्य यंत्रों के साथ व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय निर्धारित कार्यक्रम वाले। इट इज़ इंट्यूबिटिंग टू बाय इवनिंग फंक्शंस सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इन आवर टू आवर डिस्कशन शी नेवर मिस अ वर्ड। Men with bushy beards give it towel. She laughed. It is not just watching the lips. It's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish list. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says. But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. इवलिन को बिना प्रयास के, बिना सुने कार्य करते हुए देखना बहुत आकर्षक और कौतूहलपूर्ण है, बहुत मनोरंजक है। और सचमुच में एक इतना सुहाना वातावरण हो जाता है उसको बिना प्रयास के ही जब इतना ढंग से बजाती है। हमारे 2 घंटे के वार्तालाप में उसने एक शब्द भी नहीं खोया। उसने कहा, झाड़ियों सरी के दाढ़ी वाले आदमी मुझे तो विचलित कर डालते हैं। ये कहकर उसको हंसी आ गई, वो हंसने लग गई। यह केवल ओठों को पढ़ना ही नहीं है, यह पूर्ण चेहरे को, खासकर आंखों को पढ़ने की बात है। थोड़ा स्कॉटिश जुकाव से त्रुटियुक्त भाव से बोलती है, मेरी वाणी देखिए एकदम क्लियर है, एकदम स्पष्ट है, क्योंकि मैं 11 वर्ष की अवस्था तक सुनती रही हूँ। उसका कहना है, किंतु यह समझ में नहीं आता कि उसने फ्रांसीसी भाषा सीखने में कैसे महारत हासिल कर ली और प्रारंभिक रूप से जापानी भाषा कैसे सीखी। एज फॉर द म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इट tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the second passing of the stick into her fingerprints by leaning against the drums. She can feel the resonances flowing into her body. On the wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. हाँ जी, जहाँ तक संगीत का सवाल है वो बताती है, वो मेरे पूरे शरीर के हर भाग को भरकर गुजरता है। यह मेरी त्वचा, मेरी गालों की हड्डियाँ और यहाँ तक कि मेरे केशों को भेदता हुआ एक गुदगुदी करता हुआ सा गुजरता है। जब वह जल तरंग बजाती है तो मेरी उंगलियों से चिपकते ध्वनि को महसूस कर सकती है। ड्रम पर झुकते वह ध्वनि को प्रतिनिधित्व करने अपने शरीर में बहता महसूस कर पाती है। किसी लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर अपने जूते उतार देती है ताकि वह कंपनों को अपने नंगे पैरों से, उसकी टांगों से कंपन गुजर सके, पूरी तरह से गुजर जाए उसके टांगों से कंपन। ये इतने वो पूरी पारंगत हो चुके और यही उसका लुभावना संगीत, लुभावनी डिटर्मिनेशन के साथ किया हुआ प्रयत्न सफलता की तरफ, उसको ऊंचाइयों की तरफ लेता चला जा रहा था। नॉट सरप्राइजिंगली, इलेवन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। In 19
1891 she was presented with Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of Year Award, says master percussionist James Blatt. God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What is heard by us, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. इसमें लेश मात्र भी आश्चर्य की बात नहीं है कि अपने श्रोताओं को आनंदित करती है इवलिन। उसने रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के 25 वर्ष के एकल जो कि 1991 में हुआ था, सोलोइस्ट सम्मान से सम्मानित किया गया, जो उसके लिए बहुत गर्व की बात थी। मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लैट ने कहा, ईश्वर ने शायद उसकी श्रवण शक्ति छीन ली हो भले ही, किंतु कुछ असाधारण शक्ति भी तो प्रदान की है उसको। हम जो सुनते हैं वो उसे महसूस करती है, हमसे ज़्यादा गहराई से, इसी कारण संगीत से इतनी सुंदरता से प्रकट करती है। एलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक। I just got to work, often harder than classical musician, but the rewards are enormous. Apart from the regular concert, Evelyn also gives free concerts in prison and hospitals. She also gives high priority to class for young musicians and Riesling, the Beethoven Fund for Deaf Children, says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. The beautiful translation is that इवलिन मंजूर करती है कि एक प्रकार की वर्कहोलिक है, अर्थात उसके लिए काम को रोकना कठिन होता है। मुझे तो बस काम पर जाना होता है। शास्त्रीय संगीतों में ज़्यादा कठोर कार्य करने के लिए उसके इनाम बहुत विशाल होते हैं। नियमित कंसर्ट्स के अलावा जेलों और हॉस्पिटल्स के लिए निःशुल्क कंसर्ट देती है। मूल बालकों के बायोविन फंड्स को एन रिशलिन कहती है। अब बहरे बालों के लिए एक प्रकाशमान प्रेरणा स्रोत है, न कि बहरे बालों के लिए, बहरे बालकों के लिए एक प्रकाशमान प्रेरणा स्रोत है। वे देखते हैं कि उन्हें जाने के लिए और जगह नहीं है। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of orchestra and demonstrated that it can be very moving. She had given inspiration to those who are handicapped. People who took her say, if she can do it, I can. And not at the least, she has given enormous pleasure to millions. एवलिन ग्लेनी ने अपने उम्र के दुगने व्यक्तियों से अधिक सफलता प्राप्त कर चुकी है। अपने दुगुने व्यक्तियों से अधिक सफलता प्राप्त कर चुकी विद्यार्थियों में इस लाइन को फिर दोहराना चाहूँगा। बहुत प्रेरणादायक लाइन है आपके लिए, बहुत इंस्पिरेशन है। एवलिन ग्लेनी ने अपनी उम्र के डबल दुगुने व्यक्तियों से अधिक सफलता प्राप्त कर चुकी है। इस मुकाम पे आके वह ड्रम वादन को ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट पर लाई है और प्रदर्शित किया है कि वह ज़्यादा विचलित कर सकता है। उसने विकलांगों को प्रेरणा प्रदान की है, जो कहते हैं कि अगर वो उससे कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। और यह भी कहा महत्वपूर्ण नहीं है कि उसने लाखों लोगों को गहन आनंद दिया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आके ये चैप्टर ख़त्म होता है। Once again, I would like to repeat the chapter number 2 from Beehive, 9th class, CBSE NCERT, The Sound of Music, जिसका कि अर्थ है संगीत की ध्वनि। इसको लिखा गया है डेबोरा खाउली, दैट इज़ बिन कंपाइल्ड। तो यहाँ पे आके समाप्त होती है। आशा है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद आत्मसात करते चले जाइएगा और अच्छी तरह से
क्वेश्चन आंसर्स याद करने के लिए तैयार आप हो सकते हैं यदि आपने एक एक लाइन समझी है तो, और समझेंगे आप लोग, होशियार लोग हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब छोटे छोटे से क्वेश्चंस में यहाँ पे बताना चाहूँगा। आंसर दिस क्वेश्चन इन फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। निम्नलिखित प्रश्नों के कुछ उत्तर शब्द 2 में 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी म्यूज़िक। जब एवलिन रॉयल एकेडमी के ऑफ म्यूज़िक गई थी तब कितने वर्ष की थी? शी वॉज 16 ईयर्स ओल्ड ओनली। ये आंसर है। वो मात्र नहीं, शी वॉज 17 ईयर्स ओल्ड, 16 नहीं 17 ईयर्स ओल्ड। वो मात्र 17 वर्ष की थी। वेन वॉज हर डीपनेस फर्स्ट नोटिस, वेन वॉज इट कन्फर्म। उसका बेरापन कब तक देखा गया, जब उसकी पुष्टि कब हुई? हर डीपनेस वॉज नोटिस बाय हर मदर व्हेन शी वॉज 8 years old and waiting to play piano. It was confirmed when she was 11 years old. जब 8 साल की हुई थी उसकी माँ ने ध्यान दिया, जो वो पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी तब उसकी पुष्टि हुई, तो वो 11 वर्ष की थी। आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चन इन ए शॉर्ट पैराग्राफ 40 वर्ड्स। इन प्रश्नों का एक छोटे छोटे पैराग्राफ 30 से 40 शब्दों में दीजिएगा। हु हेल्प हर टू कंटिन्यू विथ म्यूज़िक, व्हाट डिड ही डू एंड से। संगीत के जारी रखने की आशा किसने दी थी, किसने उसको प्रोत्साहित किया था, उसने क्या किया और क्या कहा। द स्पेशलिस्ट एडवाइस दैट एवलिन शुड बी फिटेड विथ हियरिंग and sent to a school for the deaf, but she was determined to lead a normal life and pursue the interest in music. She was helped to continue music by master percussionist James Blunt. बहुत अच्छा नाम है ये, आपको समझ में आ सकता है। इसको और क्लियर कर दूं, percussionist James Blunt. He said, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. विशेषज्ञों ने सलाह दी थी कि उसे श्रवण यंत्र लगाया जाए, बहरों के लिए स्कूल में शिक्षाएं तो भेज दी जाए, परंतु किंतु लेकिन बट, ये सब एक ही शब्द है। वह एक सामान्य जीवन जीने की और संगीत जारी रखने के लिए दृढ़ निश्चय थी। उसे संगीत जारी रखने के लिए परकसिस्ट जैज ब्लैट ने सहायता की और उसने कहा, शायद ईश्वर ने सुनने की शक्ति छीन ली है, परंतु इसके बदले में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ असाधारण शक्ति भी तो प्रदान की है। नेम ऑफ द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेस फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। उन विभिन्न स्थानों और कारणों का नाम बताइए जिसके लिए एवलिन प्रदर्शित करती है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन गिव्स फ्री कंसर्ट एंड प्रिजन एंड हॉस्पिटल। शी आल्सो गिव्स हर प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। शी आल्सो परफॉर्म फॉर बेटोन फंड एंड डीप चिल्ड्रन। नियमित कंसर्ट के अतिरिक्त एवलिन जेलों व अस्पताल में मुफ्त प्रदर्शन करती है। वह युवक संगीत से भी प्राथमिकता से प्रदर्शन देती है। उसने बीथोवन बधिर बालकों के लिए भी योगदान किया है। आंसर इन 2 or 3 पैराग्राफ्स। अगला क्वेश्चन इन 100 to 150 वर्ड्स, 2 या 3 पैराग्राफ में अगले क्वेश्चंस के उत्तर दीजिएगा। हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। एवलिन संगीत कैसे सुनती है। फॉर म्यूजिक एवलिन शी एक्सप्लेन्स, इट पोर्स इन थ्रू ए पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स इन द स्किन, my cheekbones and even my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaving the drum, she can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes. She removes her shoes so that vibrations pass through her bare feet and upper legs. इस आखिरी लाइन को मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट वाइब्रेशन पास थ्रू हर bare feet and up
हर लेग्स। संगीत के बारे में एवलिन का कहना है, बहुत स्पष्ट रूप से कहना है, यह मेरे शरीर के एक एक अंग में, प्रत्येक भाग में उड़ल जाता है। यह मेरी त्वचा, मेरे गालों की हड्डियाँ और यहाँ तक कि मेरे बालों पर से अंदर घुस जाता है। जब वह जल तरंग बजाती है तो स्टिक से गुजरती हुई ध्वनि से महसूस करती है इस बात को। ड्रमों पर झुकते हुए निरंतर प्रवाहित होती है ध्वनि को अपने शरीर में महसूस करती है। लकड़ी के तख्त पर और नंगे पैरों पर कंपनों को गुजरते महसूस करती है। तो विद्यार्थियों, ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आपको ये पाठ पसंद में आया होगा। द साउंड ऑफ म्यूज़िक, written by Deborah Cowley, lesson number 2 from Beehive 9th class। और मुझे ऐसा बहुत विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से आत्मसात किया होगा, अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे और पूरी तरह से पढ़ने के बाद पूरा संतुष्ट हो रहे होंगे। तो अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे आखिर में विदा लेने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन घंटी बजाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाली सारी प्रोग्राम्स, सारे लेसन्स समय समय पे नोटिफिकेशन के द्वारा मिलते रहेंगे और आप इनके द्वारा सारे क्वेश्चन आंसर्स को याद करिएगा। खुश रहिएगा। हैव ए नाइस लाइफ। गॉड ब्लेस यू। Achieve the highest of your height, complete and do well. Thank you very much. God bless you once again. जय हिंद, जय भारत।